کچھ نوجوانوں سے لشکر طیبہ کے ربط ضبط میں ہونے کی خبروں کو دہلی پولیس کے خصوصی سیل نے یکسر خارج کر دیا ہے۔ دہلی پولیس کے خصوصی سیل نے واضح کیا ہے کہ میوات سے تعلق رکھنے والے لشکر کے 2 مشتبہ فرد مظفر نگر کے جن افراد سے رابطے میں تھے وہ مظفر نگر کے فساد متاثرین نہیں ہیں۔ دہلی پولیس کے خصوصی سیل نے ان تمام خبروں کو مسترد کر دیا جن میں لشکر طیبہ کے ذریعے مظفر نگر فساد متاثرین سے رابطہ بنائے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا تھا۔ دہلی پولیس کے مطابق گرفتار شدگان کا تعلق مظفر نگر سے ضرور ہے لیکن وہ فساد متاثرین نہیں ہیں۔ میں یہاں پہ آپ کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ لیاقت اور ضمیر دونوں مظفر نگر رائٹس وکٹم نہیں ہیں، ان سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ یدپی وہ مظفر نگر میں رہتے ہیں لیکن وہ رائٹ وکٹمز نہیں ہیں۔ دہلی پولیس کے مطابق گرفتار مشتبہ دہشت گردوں سے پوچھ تاچھ اور ان کے فون ریکارڈز کی جانچ پڑتال کے بعد یہ بات سامنے آئی تھی کہ مظفر نگر کے لیاقت اور ضمیر سے مشتبہ دہشت گرد رابطے میں تھے۔ مظفر نگر کے باشندے ضمیر سے متعلق پولیس نے واضح کیا کہ اس نے مشتبہ افراد کے غیر قانونی کام میں ساتھ دینے سے انکار کیا تھا، اس لیے ضمیر کو اس معاملے میں سرکاری گواہ بنایا جائے گا۔ دلی میں 2 ملاقاتیں ہوئی، اس ملاقاتوں میں اسے انکریج کرنے کی کوشش کیا کہ وہ کچھ لوگوں کو انتظام کرے جس سے وہ کڈنیپنگ کی جا سکے اور اس پیسے کو مسجد بنانے میں استعمال کیا جائے۔ اس نے جب ضمیر نے دیکھا کہ یہ ان کا کام یہ تھوڑے سے ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جو وہ اس کے لیے منظور نہیں تھا تو ضمیر بیک آؤٹ کر گیا اور اس کے بعد اس نے ان سے کنٹیکٹ نہیں کیا۔ ہم نے لیاقت اور ضمیر کا اسٹیٹمنٹ ہم نے کورٹ میں ان کو پیش کیا اور 161 اسٹیٹمنٹ CRPC کے تحت اسٹیٹمنٹ کے علاوہ ہم نے اس کو 164 CRPC کے تحت بھی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرایا ہے اور ہم اسے ایز وٹنس سائٹ کریں گے، اس سے ہمارا کیس اور بھی پختہ ہوگا۔ سریواستو نے بتایا کہ مشتبہ دہشت گردوں سے ابھی پوچھ تاچھ جاری ہے۔ لشکر طیبہ کے ذریعے مظفر نگر کے فساد متاثرہ نوجوانوں سے رابطہ بنانے کے بارے میں پھیلی خبروں پر خوب سیاسی بیان بازی ہوئی۔ سماجوادی پارٹی اور مسلم تنظیموں نے اس قسم کی خبروں کی مذمت کرتے ہوئے اسے راہل گاندھی کے مظفر نگر فساد متاثرین پر دیے گئے متنازع بیان سے جوڑ دیا تھا۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے غیر مقیم ہندوستانی باشندوں میں ملک کی اقتصادی صورتحال کو لے کر پائی جا رہی تشویش کا ازالہ کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کی معاشی حالت میں سدھار آ رہا ہے۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ آج نئی دہلی میں پرواسی بھارتیہ سمیلن سے خطاب کر رہے تھے۔ منموہن سنگھ نے کہا کہ ملک کے موجودہ اقتصادی حالات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خبرنامہ جاری رہے گا ایک بریک کے بعد۔ نیشنل بال پینٹنگ کے فائنل مقابلے میں لکی، پپو اور چھٹکاؤ نے حصہ لیا۔ جہاں لکی نے چاک مٹی، پپو نے POP، وہی چھٹکاؤ نے JK وال پٹی کا بیس بنایا اور کم پینٹ کا استعمال کرتے ہوئے دیوار کو سب سے اسموتھ اور خوبصورت فنش دیا اور یہ پرتیوگتا جیت۔ وائٹ سیمنٹ والی JK وال پٹی از دا بیسٹ۔ سیلن سے بھی پپڑی کا کوئی چانس نہیں ہوتا، دیواریں بول اٹھیں گی۔ ہم یہاں کے رابن ہوڈ ہیں، رابن ہوڈ پانڈے۔ آؤٹسٹینڈنگ راک اسٹار، میں آپ کا فین ہوں۔ گیارہ جنوری سے ہر شنیوار اور رویوار رات 9 بجے صرف کالرز پر۔ آج کل کے انہیلدی لائف سٹائل، کھان پان وغیرہ کی وجہ سے لیور کی کمزوری ایک عام بات ہو گئی ہے۔ نتیجہ گیس، کھانا ہضم نہ ہونا اور بھوک نہ لگنا۔ پیش ہے ہمدرد جگرین، مفید جڑی بوٹیوں سے بھرپور۔ جگرین ایک قدرتی لیور ٹانک ہے۔ جگرین کا روزانہ استعمال آپ کو دیتا ہے کیمیاوی اور زہریلے عناصر سے حفاظت، بہتر قوت ہاضمہ، پیلیا جیسی جگر کی بیماریوں کے علاج میں مدد۔ اپنائیے ہمدرد جگرین اور اپنے لیور کو بنائیے اسٹرانگ۔ بھرشٹاچار مکت بھارت کے لیے 10 پوائنٹ کا ایجنڈا۔ بھرشٹاچار کا کینسر کیسے ہندوستان کو
मुक्त करें इस भीषण बीमारी से। जो मामला सीबीआई को लोकपाल देगी वो लोकपाल को ही जवाब देगी। सरकारी सेवाएं जो हैं वहीं पे सबसे ज्यादा करप्शन आम आदमी फेस करता है। इम्प्लीमेंटेशन की कमियां हैं, कमियों को एड्रेस करना चाहिए। हर पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी चाहिए। सर्कल रेट को मार्केट रेट के साथ जोड़ दे। जो ब्लैक मनी लैंड में जनरेट होता है वो एकदम खत्म हो सकता है। ये तो एकदम अनिवार्य है। जानिए कैसे बदलेगा भारत। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इन वक्त पर ETV उर्दू पर। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हिंदुस्तानी सफारतकार देवयानी खोबरागड़े की गिरफ्तारी के मामले पर हिंदुस्तान ने अमेरिका के तई अपना मौकफ मजीद सख्त कर दिया है। हिंदुस्तान ने 16 जनवरी से अमेरिका को अपने सफारतखाने के अहाते से कमर्शियल सरगर्मियों पर रोक लगाने के लिए कहा है। इसके अलावा अगर अमेरिकी सफारतखाने की गाड़ियों से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी तो उन पर जुर्माना भी आयद किया जाएगा। वाज़ेह है कि हिंदुस्तानी सफारतकार देवयानी खोबरागड़े पर वीजा धोखाधड़ी मामले में अमेरिका में मुकदमा चल रहा है। देवयानी फिलहाल न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा मिशन में तैनात हैं। हिमाचल प्रदेश के वजीर आला वीरभद्र सिंह के ऐलान करदा ज़राए आमदनी पर अब सवाल उठने लगे हैं। बताया जाता है कि गुज़श्ता 3 वर्षों में वीरभद्र सिंह के ऐलान करदा ज़राए आमदनी में 14 गुना इजाफा हुआ है। महकमे इनकम टैक्स ने वीरभद्र सिंह को रिवाइज्ड टैक्स रिटर्न्स के बाद ताजा नोटिस जारी किया है। वीरभद्र सिंह ने गुज़श्ता 3 वर्षों के रिवाइज्ड IT रिटर्न दाखिल किए हैं, जिसमें उनकी आमदनी 47 लाख रुपयों से बढ़कर 6.5 करोड़ से ज्यादा बताई गई है। दूसरी जानिब सीबीआई ने भी वीरभद्र सिंह के इनकम टैक्स के दस्तावेजात की तहकीकात का आगाज कर दिया है। और भाई नाज़रीन, खोबरागड़े के मामले पर दिल्ली में हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र से गुफ्तगू है। शैलेंद्र, जिस तरह से अमेरिका के इस कार्रवाई पर हिंदुस्तान ने भी अपना मौक़िफ़ सख्त कर लिया है, जिस तरह से हिंदुस्तान ने अपना गुस्सा इस बार फिर दिखाया है, क्या कुछ हो रहा है दिल्ली में? ने आपको बता दें कि देवयानी के खिलाफ जो चार्जेस लगाए गए हैं उस पर पहला जो सुनवाई होगी वो 13 जनवरी होगी। 13 जनवरी की डेडलाइन है और 13 जनवरी को ही प्रीत बराला जो वहां के जो उनके वकील हैं वो चार्जेस लगाएंगे देवयानी पे, और भारत चाहता है कि इनको एक्सटेंड किया जाए। तो 13 जनवरी की डेडलाइन से ठीक एक हफ्ता पहले एक बार फिर दबाव बनाया है इंडिया ने। फिर कुछ कड़े कदम उठाए गए हैं ताकि दबाव बने और अमेरिका चार्जेस ड्रॉप करे देवयानी के खिलाफ, और साथ ही साथ पूरे मामले को लेकर माफी मांगे जिस तरह देवयानी के साथ बर्ताव हुआ है। इसमें 2 अहम कदम है, जिसमें एक तो साफ तौर पर विदेश मंत्रालय ने, फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है यूएस एम्बेसी से कि एक तो वो अपने यहाँ पर जो ड्यूटी फ्री लिकर है, ड्यूटी फ्री शराब है, उस पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जो नॉन डिप्लोमेट हैं वो भी खरीदारी कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं पैसे का फायदा पहुंच रहा है यूएस एम्बेसी को। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो यूएस एम्बेसी में जो एक क्लब है जिसको जो आता है अमेरिकन कम्युनिटी सपोर्ट एसोसिएशन के तहत, इस क्लब में तमाम फैसिलिटीज हैं, चाहे बार हो या एली हो, स्विमिंग पूल हो, सॉकर फील्ड, टेनिस कोर्ट, इन सब पर कहीं ना कहीं कमर्शियल एक्टिविटीज माना जा रहा है इनको। और एमईए ने कहा है कि ये कहीं ना कहीं वायलेशन है प्रोटोकॉल का कि इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज अंदर से चलाने से ब्यूटी पार्लर भी शामिल है। तो इस तरह की एक्टिविटीज 16 जनवरी यानी कि देवयानी के जो देवयानी का जो मामला है कोर्ट में, ठीक उसके 3 दिन बाद तक ये पूरी फैसिलिटीज वापस ले ली जाएंगी। और साथ ही साथ एक बड़ा अहम कदम गिलानी और उठाया गया है कि अभी तक जो डिप्लोमेट की गाड़ियां थी उन पर नरमी थी, लेकिन अब ये कहा गया है कि अगर डिप्लोमेट की गाड़ियां, जो खासकर यूएस एम्बेसी की जब बात कर रहे हैं हम, तो अगर ट्रैफिक वायलेशन हो रहा है तो उनके चालान भी अब काटे जाएंगे। तो कई बड़े कदम उठाए गए हैं एक बार फिर से। तो कहीं ना कहीं ये भी जाहिर हुआ है कि देवयानी खोबरागड़े के मामले पर इंडिया और यूएसए के बीच में कोई बीच का रास्ता अब तक नहीं निकल पाया है। जी, जब इतना कड़ा कदम हिंदुस्तान ने उठा लिया है तो इसके असरात किस तरह के पड़ेंगे दोनों रिश्तों पर, और
एम्बेसी की तरफ से क्या कुछ रद्दमल आया है अभी तक? देखिए, अभी तक इस पे एम्बेसी ने तो फिलहाल कुछ नहीं कहा है, लेकिन कल देवयानी के मामले को लेकर जो उनके पिता हैं उन्होंने कल एक प्रोटेस्ट किया था कॉन्सुलेट में मुंबई में, जिसे कहीं ना कहीं नोटिस किया है फॉरेन मिनिस्ट्री ने। उन्होंने अगले ही दिन ये कड़े कदम उठाए और यूएस एम्बेसी को फिर से ये जाहिर कर दिया है कि भारत या नई दिल्ली जो है वो अब और डील नहीं बरतेगी। वो नहीं चाहेगी कि अमेरिका अपनी मनमानी करता रहे और जो इंडियन डिप्लोमेट हैं जो बाहर काम करते हैं उनसे इस तरह का बर्ताव किया जाए। हालांकि यूएस एम्बेसी ने इस पर अब तक खुल के कुछ कहा नहीं है। जब भी इस तरह का कोई कदम उठाया जाता है तो उसका जवाब, उसका रिएक्शन वॉशिंगटन से ही आता है, तो उसका थोड़ा इंतजार करना होगा फिलहाल हमें। लेकिन जिस तरह का कड़ा कदम उठाया गया है नई दिल्ली की तरफ से, जाहिर है इससे कि देवयानी के मामले पर यूएस की चहट से वो तैयार नहीं है। इसी के बाद नई दिल्ली एक के बाद एक कड़े कदम उठाता जा रहा है। और साथ ही साथ आपको एक गिरानी और बता दूं कि इसके अलावा अमेरिकन सेंटर में जो अमेरिकी फिल्में थी वो दिखाई जाती थी, उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। उनसे कहा गया है कि जब तक लाइसेंस आप नहीं लेते हैं अमेरिकन जो सेंटर है, जब तक आप लाइसेंस नहीं लेते हैं तब तक आप वहां पे फिल्में नहीं दिखा सकते। तो कुल मिलाकर जो उनके रिक्रिएशनल और जो बाकी तरह की फैसिलिटी उनको यहाँ मिल रही थी नई दिल्ली में, उन पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है नई दिल्ली की तरफ से। लेकिन कुल मिलाकर मामला जो है पूरा देवयानी को लेकर ही है कि जब तक डिप्लोमेट के साथ चार्जेस वापस नहीं लिए जाते और एक फॉर्मल अपॉलॉजी, एक फॉर्मल माफी नहीं मांगी जाती है अमेरिका की तरफ से, तब तक इस तरह के जो कदम है वो बरकरार रहेंगे अमेरिका के खिलाफ। जी शुक्रिया शैलेंद्र इस जानकारी के लिए। ये थे हमारे नुमाइंदे दिल्ली से शैलेंद्र तफसीलात दे रहे थे। जिस तरह का मामला दोनों तरफ से रुख बड़ा कड़ा हो गया, हिंदुस्तान पीछे हटने को तैयार नहीं। एक नई पाबंदियां, एक नई चीजें हिंदुस्तान अब अमेरिकी एम्बेसी पर इंडिया में लगा रही है। और आगे बढ़ते हैं, गाजियाबाद के कौशाम्बी में वाक़ आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर हिंदू रक्षा सेना के कारकुनों ने हमला किया है। मौसूला खबरों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से आम आदमी पार्टी लीडर प्रशांत भूषण के बयान पर भड़के हिंदू रक्षा सेना के दर्जनों कारकुनों ने आपके दफ्तर पर हमला करके तोड़फोड़ मचाई। इस हमले में दफ्तर के साजो सामान को काफी नुकसान पहुंचा। इराक के दारुल-हुकूमत बगदाद में एक क़हवाखाने पर एक बंदूक बरदार की फायरिंग में कम से कम 12 अफराद हलाक हो गए हैं। महलूकीन में 7 खवातीन भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक मशरकी बगदाद में वाक़े जायुना बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट में यह क़हवाखाना कायम था। काबिल गौर बात यह है कि गुज़श्ता बरस मई में भी इसी क़हवाखाने में एक बंदूक बरदार की फायरिंग में 12 अफराद हलाक हुए थे। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मोहतरम नाजरीन आदाब। सरजमीन लखनऊ पर जश्न मिलादुन नबी में आज आपका दिली इस्तकबाल करते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस मालूमाती प्रोग्राम में आज हमारे साथ मोहतरम मौलाना अब्दुल अली फारूकी साहब तशरीफ फरमा हैं, जो कि आपके सवालात के जवाब देने के लिए यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं आपको ये भी बाबर करा दूं कि इस मरतबा हमने एक और बहुत मारूफ नातख़्वां सुंदुस एहसन साहिबा को अपने स्टूडियो मदऊ किया है। नाज़रीन इकराम, हमारे प्रोग्राम्स की रिवायत रही है कि इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज हम हम्द बारी ताला या नात मुबारक से करते हैं। इससे पहले कि मोहतरम मौलाना अब्दुल अली फारूकी साहब को ज़हमत सुखन दी जाए, आइए एक बार फिर
उसी रिवायत की पासदारी करते हुए हम सुंदुस एहसन से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम का आगाज़ नात मुबारक से करें, क्योंकि ये यकीन है हमें कि जब जब हमारे प्रोग्राम का आगाज़ हमद बारी ताला या नात मुबारक से होता है तो उसे कामयाबी की ज़मानत मिल जाती है। जिस दिल में मोहब्बत हो उनकी हर वक्त मचलती रहती है, जिस दिल में मोहब्बत हो उनकी हर वक्त मचलती रहती है। दिन रात की कोई कैद नहीं, ये शम्मा तो जलती रहती है। दिन रात की कोई कैद नहीं, ये शम्मा तो जलती रहती है। महबूबे खुदा सोए हैं अभी, पढ़ लेंगे नमाज़े असर अली। सूरज भी चमकता रहता है और शाम भी ढलती रहती है। आइए नात मुबारक के इन अशार के साथ सुंदुस एहसन से दरख्वास्त करते हैं कि वो बारगाह रिसालत माब में अपनी अकीदतों और मोहब्बतों का नजराना बशक्ल नात पेश करें। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। दहन ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। दहन ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठेंगे, वहाँ तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। न रूह अमी न अर्शे बरी, न लौहे मुबीन कोई भी कहीं। न रूह अमी न अर्शे बरी, न लौहे मुबीन कोई भी कहीं। खबर ही नहीं जो रमज़े खुले अज़ल के यहाँ तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर दिया। इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर दिया। गए हुए दिन को असर किया, ये ताहो तबा तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। ये शम्स शामो सहर, ये बरको शजर, ये बाग़ समर। ये शम्सो क़मर, ये शामो सहर, ये बरको शजर, ये बाग़ समर। ये रूहे अमी, ये अर्शे बरी,
हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया सुंदुस हसन। मोहतरम नाज़रीन इकराम, मैं शुक्रगुजार हूँ मोहतरमा सुंदुस हसन साहिबा का। इन्होंने बहुत खूबसूरत आगाज़ किया, हमें कामयाबी की ज़मानत मिल गई। आइए अब ऊपर की शख्सियत पर गुफ्तगू करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसके सदक़े में इस कायनात को पैदा किया गया है। मैंने अर्ज़ किया था आपसे इब्तदा में कि हमारे साथ बहुत मारूफ आलिम दीन मोहतरम अब्दुल अली फारूकी साहब तशरीफ़ रखते हैं। ज़ाहिर है इससे पहले भी हम आपको ज़हमत देते रहे हैं, तो आइए गुफ्तगू के सिलसिले को दराज करते हुए मोहतरम, ज़ाहिर है वो बरगज़ीदा शख्सियत, वो बुजुर्ग शख्सियत जिसके सदक़े में इस कायनात को पैदा किया गया, सीरत मुस्तफ़ा और इस्लाह मुआशरा बहुत अहम मौजू है। और चाहता यह हूँ कि यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ हो और हमारे नाज़रीन को मालूम हो कि इस्लाह मुआशरा में सीरत नबवी की क्या अहमियत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में अपने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को नमूने के तौर पर पेश करते हुए फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। इस दुनिया को कभी भी इस बात का शिकवा नहीं रहा कि उसकी रहनुमाई करने वाले, उससे अच्छी अच्छी बातें कहने वाले मौजूद नहीं रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छी लफ़ाज़ी कर लेना, अच्छी तकरीरें कर लेना, अच्छा कलाम कर लेना, ये हर दौर में इस किस्म के लोग दस्तयाब रहे हैं और आज भी मौजूद हैं और हमेशा मौजूद है। लेकिन जो कहा उसको अपने अमल से साबित कर देना, ये हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इम्तियाज है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में यूं फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। ऐ ईमान वालो, तुम वो बात कहते क्यों हो जिस पर अमल खुद नहीं करते। अल्लाह को ये बात बहुत नागवार है और बहुत नापसंदीदा है कि तुम वो बात कहो कि जिसके ऊपर तुम खुद अमल नहीं करते। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी का और आपके पैगाम का इम्तियाज ये है कि आपने जो कुछ कहा सब पर अमल करके दिखाया। 23 बरस की मुख्तसर सी हयात आपकी नबूवत के ऐलान के बाद 40 बरस की उम्र शरीफ जब आपकी हुई तो आपने ऐलान नबूवत किया अल्लाह के हुक्म से, और 63 बरस की जब आपकी उम्र शरीफ हुई तो आपने इस दुनिया से रुखसती ली। 23 बरस की मुख्तसर सी मुद्दत, नबियों में सबसे कम मुद्दत ये हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लेकिन 23 बरस की मुख्तसर सी मुद्दत में सब कुछ पूरे आलम को अता करके आप दुनिया से तशरीफ ले गए। और आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि आज के दौर को तरक्की का दौर कहा जाता है, इल्म का दौर कहा जाता है, टेक्नोलॉजी का दौर कहा जाता है, दौर इल्म कहा जाता है। मगर मैं ये कहता हूं कि इस दौर इल्म में बेचैनियां बढ़ी हैं, बेकरारियां बढ़ी हैं, रिश्ते खत्म हुए हैं, रिश्ते और नाते कमजोर हुए हैं। ऐसे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि सफर सितारों का करने वाले सुकून की खातिर तड़प रहे हैं। सफर सितारों का करने वाले सुकून की खातिर तड़प रहे हैं। अब इनके कुल कालिजों को दे दे नबी का बख्शा निसाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा इम्तियाज ये है कि आपने अपनी जिंदगी के अंदर सब कुछ अमल करके दिखा दिया। और वो लोग कि जो उस वक्त की जमीन के सबसे बदतरीन लोग थे, उन पर आपने मेहनत की और मेहनत करके 23 बरस की मुख्तसर सी मुद्दत में ऐसा बना दिया कि वो जमीन के सबसे कीमती लोग बन गए। ये सब मेहनत थी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की, कि यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इम्तियाज है। अब इस चीज को आप लेकर चलिए मुआशरे के सिलसिले में, मुआशरे की किसी भी रुख को आप लीजिए, किसी भी जाविये से आप उसको देखना चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत
آپ کا کردار، آپ کی تعلیمات، اور صرف زبانی تعلیمات نہیں بلکہ عملی نمونے زندگی کے ہر میدان میں آپ کے لیے موجود ہیں، اور اصلاح کا ہر پہلو آپ کی زندگی میں موجود ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں خود یہ فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ اے نبی آپ کو تو اخلاق عظیم عطا کیا گیا. خلق کا جو اعلیٰ ترین تصور ہے وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے کہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا صل من قطعک واعفو عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. دیکھو تم سے جو کٹے تم خود بڑھ کر اس سے جڑ جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واعفو عمن ظلمک، تم پر جو ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو. واہ واہ واہ. واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ تم حسن سلوک کرو. برائی کا جواب برائی سے نہ دے کر اچھائی سے دو تو برائی مٹے گی. یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اس سے ملتی جلتی باتیں بہت سے دنیا کے بڑے لوگوں نے کہی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن سوال صرف اتنا ہے کہ ان کہنے والوں نے اپنی زندگی میں خود اس کو کر کے برت کر دکھایا ہو، اس کی مثال ہم کو نہیں ملتی. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے جو کہا اس پر عمل کر کے دکھایا اور بتایا کہ کٹنے والوں سے جڑا کیسے جاتا ہے، ظلم کرنے والوں کو معاف کیسے کیا جاتا ہے، اور بدسلوکی کرنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کیسے کیا جاتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتیاز ہے، اور آپ نے جس معاشرے کی تشکیل کی اس معاشرے کے افراد نے اس پر عمل کر کے دکھایا دنیا کو کہ رہنمائی ایسی ہوتی ہے. اسی لیے میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ رہنما بے مثال تو اس رہنما سے رہنمائی حاصل کرنے والے بھی بے مثال. سبحان اللہ سبحان اللہ. محترم ناظرین کرام، یہ تھے جناب محترم مولانا عبدالعلی فاروقی صاحب، جنہوں نے گفتگو کا آغاز کیا، نہایت مبارک اور مقدس گفتگو کا آغاز کیا. ابھی ہم وقفہ لیں گے، لیکن وقفہ لینے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں گے اگر آپ بھی ہمارے اس مبارک اور مقدس پروگرام میں شامل ہو کر عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو تہنیتی پیغامات کی ترسیل کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، آپ ہمیں SMS بھی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو بتا دیں ہمارے ٹول فری نمبر جن پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، نوٹ فرما لیجیے 1800-3454-026. ہمارا ایک اور ٹول فری نمبر ہے 1800-4254-089. ناظرین کرام، اگر آپ ہمیں STD نمبر پر کال کرنا چاہتے ہیں یا اپنے پیغامات کی ترسیل کو یقینی بنانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں STD نمبر پر بھی کال کر سکتے ہیں. ہمارا STD نمبر ہے 08415305010. وقفے پہ جانے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اگر آپ SMS کے ذریعے اپنے پیغامات کی ترسیل کرنا چاہتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو وہ تمام تر میسج بھیجنا چاہتے ہیں جن کا تعلق سیرت نبوی سے ہے یا عید میلاد النبی سے ہے، تو آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں. SMS کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ٹائپ کرنا ہے JMN، اپنا میسج اپنا نام اور شہر کے نام کے ساتھ بھیج دیجیے 56263579 پر. چند ہی لمحوں میں ایک بار پھر آپ سے روبرو ہوں گے. فی الحال لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. دیکھتے رہیے سرزمین لکھنؤ سے جشن میلاد النبی. جسم پر مٹی ملیں گے پاک ہو جائیں گے ہم. اے زمین ایک دن تیری خوراک ہو جائیں گے. اس سنیچر محفل مشاعرہ میں دیکھیے ٹانڈا اتر پردیش میں منعقدہ ایک شاندار خود ہند مشاعرہ
रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।